Hey everyone, how are you all? I hope you all are good, you all are safe. See student, today our topic is chapter number 10, international business. So first of all, international business. What is international business? A business which operated the outside of a boundary line of a country is called international business. And a business, or we can say a business which deals with in two countries or operated in two countries or belongs to two countries, that business is called international business. So manufacturing and trading beyond the geographical boundaries of a country is known as international business. यानी कि आपके ही देश से जब बिलोंग नहीं करता आपका बिज़नेस, आप अपने सपोज टू बी वी आर इन इंडिया और हम लोग अगर जापान के साथ या अमेरिका के साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं, राइट, व्हेन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. सिंपल. So the development of communication technology and infrastructure etc. make it possible. New modes of communication and development of faster and more efficient means of transportation have brought nationals closer to one another, as a result of which trade between them can take places. So यहाँ पर कुछ reasons हैं international trade के. What do you think students, why we need to do international business? हर चीज़ तो हमारे देश में अवेलेबल है, फिर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं? क्यों ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल बिजनेस करने की? टू एक्सपेंड द इकोनॉमी. ठीक है, हम जब इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं बच्चों, तो उसका और एक आप अपने ही इकोनॉमी में अपने ही देश में बिज़नेस कर रहे हैं, उसका आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम दो ऐसी कंपनियों की बात करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा. द फर्स्ट वन इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंसेज इन द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द कंट्रीज मेक दैम इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी गुड ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. And second main reason is labor productivity and production costs differ among the nations due to socio-economic, geographical and political reasons. And number 3, the availability of different factors of production such as labor, capital, raw material differ among nations. बच्चों होता क्या है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम ये देखते हैं कि हमें बेनिफिट किस में है, कि अगर हम नेशनल लेवल पे करेंगे उसमें है, या हमें इस ये प्रोडक्ट हम पर्टिकुलर अगर हम बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं, राइट, तो हमें उसमें बेनिफिट है. तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं. जब हमें लगता है कि नहीं, अगर मेरे जो देश में अगर लेबर कॉस्ट कम है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर कम आ रहा है, तो डेफिनेटली वी प्रेफर टू प्रोड्यूस विद इन आवर कंट्री. बट इफ़ वी थिंक अबाउट दैट और वी नो अबाउट दैट कि जो दूसरा कंट्री है, सामने वाला जो कंट्री है, देश है, नेशन है, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमसे कम है, तो डेफिनेटली हमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ से बाहर से वो प्रोडक्ट मंगवाने में फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं. So concept of international business, the major forms of business operations that constitute international business are as follows. The first one is merchandise exports and imports. Merchandise export means sending tangible goods abroad, and merchandise import means bringing tangible goods from abroad. Export and imports, which involves trade in intangible items that cannot be seen or touched, it is also called invisible trade. And the next one is another way of entering into international business is licensing and franchising country to produce and sell goods under their trademarks, patent और copyright आएगा यहाँ पर, राइट नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना. इन lieu of some fees is called licensing. Pepsi and Coca-Cola. Foreign investment is the another important. So we can do business from the other country with many of types. Like आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल प्रोड्यूस अपने ही देश में कर रहे हैं और उसे सिर्फ बाहर वाले मुल्क में सेल कर रहे हो. द फर्स्ट थिंग, आपने क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया है किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी में, आपने इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस. आप क्या कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर भी बाहर वाली कंट्री में कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, एंड वी रीड इट इन द स्कोप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? बेनिफिट टू नेशन. अब यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बेनिफिट हो सकते हैं, नेशन के लिए भी हो सकते हैं, तो कस्टमर के लिए भी हो सकते हैं. सो बेनिफिट्स टू नेशन, द फर्स्ट वन इज़ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है. सेकेंड वन स्पेशलाइजेशन गुड्स. क्योंकि
ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन रेज हो रहा है, कंपटीशन रेज होता है तो आपके पास स्पेशलाइज्ड गुड्स और गुड क्वालिटी के गुड्स ही आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। थर्ड वन इज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, एंड येस नेक्स्ट वन इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द अदर कंट्रीज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं था, कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बन रहा है वो हमारे तक कैसे आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू ये पॉसिबल हुआ कि मुझे इम्पोर्ट करने का मौका मिल रहा है, मुझे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करने का बेनिफिट मिल रहा है। फर्म के लिए क्या बेनिफिट है बच्चों? इट इंक्रीज द इंक्रीजिंग प्रॉफिट, राइट, इट यूजेस देयर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी, improve the growth prospectus and achieve the growth of the firm facing tough market condition in the domestic country। एंड अगर हम यहाँ पे ड्रॉबैक की बात करें तो बच्चों यस हमारा जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो इससे बड़ा बैड इफ़ेक्ट होती हैं एक्चुअली, और तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। एंड द बेनिफिट इम्प्रूव बिजनेस विजन। सो स्टूडेंट्स आज हमने बात की है इंटरनेशनल बिजनेस मीनिंग, बेनिफिट्स एंड स्कोप्स की। कल हम फर्दर जो टॉपिक है वो ले लेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।